हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ निश्चय एजुकेशन सर्विसेज। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ व्यू ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ। ਤਾਂ ਟੂਡੇਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਇਜ਼ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ नहीं है। पर क्यों करंट नहीं है? पहली गल तो यह कि इत्थे कोई बैटरी नहीं लगी हुई है ना। दूसरी गल यह कि ਜਿਹੜੇ इस वायर के अंदर फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने या चार्जिस ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ कोई एक यूनिडायरैक्शनल फ्लो नहीं है। मतलब सानू नहीं पता कि ਜਿਹੜੇ चार्जिस हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। चार्जिस इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। चार्जिस मूव भी कर रहे हैं कि नहीं ये भी सानू नहीं पता हैगा। ਤਾਂ ਇਹਦਾ मतलब फिर करंट की ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ है वो की हो सकती है या करंट ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। देखो करंट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਇਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਔਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ that is known as current। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਨ ਏ ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ। ਕਿਸੇ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰੰਟ ਕਹਿਲਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ठीक है। हुण मेरे को एक वायर का छोटा जिहा पीस है, ठीक है, मेरे को एक छोटा जिहा पीस है वायर का। हुण क्योंकि जब बैटरी जब कनैक्ट होएगी तो बैटरी चार्जिस नूं पुश करेगी, तो चार्जिस इस क्रॉस सैक्शन चों क्रॉस करनगे। ठीक है, जब चार्जिस इस क्रॉस सैक्शन चों क्रॉस करनगे इहदा मतलब तार दे विच की आ जाएगा? करंट आ जाएगा। तो हम करंट ਨੂੰ डिफाइन किवें करिए? करंट ਦਾ मतलब है चार्ज पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन अपॉन टाइम। किन्ने टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ that is known as करंट। ਸਿੰਪਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ that is known as करंट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ चार्जेस ਦਾ करंट ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ? ओके, ਹੁਣ ਦੇਖੋ what is electric current। definition देखते हैं। the flow of electric charges through a conductor constitutes electric current। electric current in a conductor across an area held perpendicular to the direction of flow of charge is defined as the amount of charge flowing across that area per unit time। किन्ने टाइम च किन्ना चार्ज एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन चो पास कर गया that is known as current। फॉर्मूला है I is equal to Q by T where Q is charge and T is time, या फिर I is equal to dQ upon dt। छोटा चार्ज छोटे टाइम च किस किन्ने क्रॉस सेक्शन चो पास हो रहा। ऐसा यूनिट करंट दे की हुंदा है? ऐसा यूनिट हुंदे हैं एम्पीयर, जो कि ऐसा यूनिट है, और 1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। किन्ने कूलम दा चार्ज एक सेकंड च एक क्रॉस सेक्शन चो पास कर गया that is known as current। ठीक है, इतना समझ आया? नाउ डायरेक्शन ऑफ करंट, लेट अस डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ करंट कि करंट दी डायरेक्शन क्या हुंदी है। कन्वेंशनल करंट देखो, पहला अपने को एक डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट दी जो कि जाती है पॉजिटिव टू नैगेटिव। मतलब जिस तरह तुसी पुराने वाला जिहड़ा डायग्राम देखिया सीगा टर्मिनल वाला, उसदे विच एक चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल तो जाके नैगेटिव टर्मिनल नूं टच कर रहा सीगा। इहनूं कहंदे ने कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट दा की मतलब है? शुरू दे विच जद करंट दी खोज होई सीगी या करंट दी डिस्कवरी होई सीगी ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ पॉजिटिव चार्ज है वह मूव करके नैगेटिव चार्ज तक जाना चाहता है, इस करके इसका नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट। पर क्या कोई होर भी डायरेक्शन होंदी है करंट की? एक होर डायरेक्शन होंदी है, उस डायरेक्शन का नाम है इलैक्ट्रॉनिक करंट। इलैक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन होंदी है फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। पर यह करंट दूसरे करंट नालों डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इस करके है 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन की खोज होने तो बाद ये पता लग्या कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, बल्कि ਜਿਹੜੇ फ्री इलैक्ट्रॉन्स ਹੁੰਦੇ हैं वो मूव करके पॉजिटिव चार्ज तक जाते हैं, ਤਾਂ करंट चलता है। इस करके करंट की एक नवी डायरेक्शन रखी गई नैगेटिव टू
पॉजिटिव। तो हुण करंट दी दो डायरैक्शनां ने, अगर तुहानूं कोई पूछे वट इज द कन्वेंशनल डायरैक्शन ऑफ करंट, तुसीं कहोगे पॉजिटिव टू नैगेटिव। और अगर कोई पूछेगा कि इलैक्ट्रॉनिक करंट की डायरैक्शन है, तुसीं कहोगे फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, दोनों आपस में की ने बिल्कुल ऑपोजिट ने। ठीक है, समझ आया? ओके। करंट स्केलर है या वैक्टर, एक बड़ा ही बेसिक या और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो मेरे को एक वायर है, अगर इस वायर दे विच इस तरह आया, इधर भी एक वायर का टुकड़ा है, ये दो वायर आपस में जुड़िया हुई और एक सिंगल वायर बना रही ने। अगर इस वायर के विचों 3 एंपीयर का करंट जा रहा है और इस वायर के विच 4 एंपीयर का करंट जा रहा है, तो इस सिंगल वायर के विचों कितना करंट जाएगा? एक्सपेरिमेंट्स ये दसते हैं, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ये दसते हैं कि अगर 3 और 4 एंपीयर का करंट किसी ब्रांच चो जाएगा तो इस ब्रांच चो आएगा 7 एंपीयर का करंट। क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड भी है, डायरैक्शन भी है, तो उस हिसाब नाल करंट नूं वैक्टर होना चाहिए। और अगर करंट वैक्टर है तो इस वायर दे विच 5 एंपीयर का करंट फ्लो होना चाहिए सीगा। वो क्यों? 3 दा स्क्वायर प्लस 4 दा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक है, और 25 का रूट इज 5, तो 5 एंपीयर का करंट होना चाहिए सीगा। बट एक्सपेरिमेंट ये दसते हैं कि 7 एंपीयर का करंट आ रहा, तो कित्थे गड़बड़ है? चलो समझते हैं। किसी भी क्वांटिटी नू वैक्टर होने दे लई की चाहिए? 3 कंडीशनां, ओहदा मैग्नीट्यूड भी होवे, ओहदी डायरैक्शन भी होवे, ते ओह वैक्टर लॉज ऑफ एडिशन नू फॉलो करदा होवे। करंट लई देखदे हां, क्या करंट दा मैग्नीट्यूड है जिवें 3 एंपीयर। क्या करंट दी डायरैक्शन है, बल्कि 2 डायरैक्शनां ने। पर क्या करंट वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन नू भी फॉलो करदा है? नहीं, करंट वैक्टर लॉ ऑफ एडिशन नू फॉलो नहीं करता, जिस करके करंट बन जाता है स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग द डायरैक्शन होने के बावजूद और मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी वैक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन करंट फॉलो नहीं करता। करंट की सिंपल स्केलर एडिशन होंगी है। अगर 3 वायर के 3 एंपीयर, 2 एंपीयर और 1 एंपीयर का करंट आ रहा है, तो जी सिंगल वायर होगी वो 6 एंपीयर का करंट आएगा। ठीक है, वैक्टर लॉज नहीं लगेंगे। चलिए गए। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का कंसेप्ट काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बड़े ध्यान समझना। ईएमएफ का मतलब होता है इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेट्स अंडरस्टैंड। तो की होंगे इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स? देखो अपने को सिंपल एक बैटरी है और एक वायर है और विच लग्या होया है रजिस्टर। ठीक है, हुण एक चार्ज देखो इस तरह जाता है, तो दिस इज नोन एज करंट। ठीक है, जब बैटरी के कनैक्शन आप लगावांगे तो जो चार्ज होएगा वो अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस आ जाएगा। हुण जो चार्ज, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस इधरों मूव करके इधर इस टर्मिनल च वापस आ जाएंगे, तो इत्थे बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। हुण इस बहुत सारे चार्ज ने मूव होके इत्थे तक भी जाना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज तक जाना है। ये होएगी चार्ज दी इंटरनल मूवमेंट ऑफ बैटरी। सवाल यह है कि बैटरी इसनूं पुश तां करती है, मतलब बैटरी एक तरह की की है पुशिंग फोर्स है। ठीक है, बैटरी एक तरह की की है पुशिंग फोर्स, जो कि इलैक्ट्रॉन्स नूं बाहर वाले सर्किट दे विच घुमांदी है। लेकिन इलैक्ट्रॉन्स जब नैगेटिव चार्ज नैगेटिव टर्मिनल ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव चार्ज तक भी पहुंचना होंदा है। सवाल यही है, ये काम कौन करता है? ये काम करती है ईएमएफ डिवाइस, मतलब इलैक्ट्रोमोटिव फोर्स। अंदर वाले चार्ज नूं जिहड़ा नैगेटिव टर्मिनल दे विच इकट्ठा होया पिया, उस चार्ज नूं एक जगह तो दूसरी जगह ते लेके आना, दैट इज नोन एज ईएमएफ। एक्चुअली हुंदा की है, जिहड़ा नैगेटिव टर्मिनल हुंदा है वो हुंदा है लो पोटेंशियल ते, और जिहड़ा पॉजिटिव टर्मिनल हुंदा है वो हुंदा है हाई पोटेंशियल ते। तां किसी भी चार्ज नूं लो पोटेंशियल तो हाई पोटेंशियल तक लेके आना, इसनूं कहंदे ने ईएमएफ। ठीक है, फॉर्मूला की है ईएमएफ दा dw upon dq, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन देखते हैं। EMF of an EMF device is the work per unit charge that the device does in moving the charge from low potential to high potential. ठीक है, SI unit of EMF is joule per coulomb. Note, EMF of a source is equal to maximum potential difference between its terminals when it is an open circuit. किस तरह? अगली स्लाइड समझते हैं। ये देखो, एक ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब की होंदा है? व्हेन देयर इज नो करंट इन द सर्किट, उसਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ओपन सर्किट। सपोज करो ਜਿਹੜੀ ਇਹ बैटरी है, इसਨੂੰ ਆਪਾਂ आइडल बैटरी लेके चलते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस 0 है। अगर इस बैटरी ਦੀ 12 वोल्टेज है, तो ਇਹਦਾ मतलब भी इस बैटरी ਦੀ EMF ਹੋਈ 12 वोल्ट। ਤਾਂ ओपन सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ EMF पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ ਬਰਾਬਰ हो ਜਾਂਦੀ है। मतलब
EMF इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन जब कनैक्शंस आपां लगा दांगे तो नाल दे नाल EMF तो उन्नी रहेगी लेकिन पोटेंशियल हल्का जा ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ओके, लेट्स मूव। ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ की हिस्टरी जानने के लिए तुसी इस लिंक ते क्लिक कर सकते हो ये यूट्यूब पे जाके, और तुसी ओम्स लॉ की हिस्टरी देख सकते हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टरी है, तो आई सजेस्ट कि तुसी ओम लॉ की हिस्टरी जरूर पढ़ो। पर फिलहाल आप समझते हैं व्हाट इज ओम्स लॉ। जर्मनी ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜॉर्ज ਸਾइमन ओम ने एक लॉ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਮਸ ਲॉ। ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲॉ ਹੈ। ਓਮਸ ਲॉ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਐ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ पोटेंशियल डिफरेंस से प्रपोर्शनेट होएगा। जिस तरह पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जावांगे करंट भी बढ़ता चला जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो करंट भी घट जाएगा। अगर इस इक्वेशन आप पूरा करिए तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू I इंटू R, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। एक गल ध्यान च रखना कि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल कंडक्टिंग डिवाइसेस वेदर दे ओबे ओम्स लॉ और नॉट। ਜਿਹੜੇ डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮਿਕ डिवाइसेस, और ਜਿਹੜੀਆਂ डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो नहीं ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ नॉन ओमिक डिवाइसेस। लेकिन अगर किसी भी डिवाइस ਦੇ ਵਿੱਚ करंट फ्लो हो रहा ਤਾਂ ਇਹ वाली इक्वेशन ਜ਼ਰੂਰ लगेगी। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस की होंदी है? इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। इसमें थोड़ा लेटर ऑन डिस्कस करांगे थोड़ी डिटेल्स। फिलहाल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा है वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज अपॉन करंट की रेशियो ही की कहलाती है रेजिस्टेंस। यूनिट होंदे ने ओम, इस तरह भी पा सकते हो। दिस इज द सिंबल ऑफ फिक्स रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब चेंज होंदी हुई रेजिस्टेंस। हुण आपां ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस होंदी की है। देखो ये हुंदा रजिस्टर जो कि किसी भी सर्किट दे विच लग्या हुंदा। ये तुसीं अक्सर किसी भी इलैक्ट्रॉनिक सर्किट दे विच जिवें टीवी दे विच, रिमोट दे विच, कैलकुलेटर दे विच, डिजिटल डायरीज दे विच, रेडियो, इनफैक्ट जो कोई भी अगर कोई इलैक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ या इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ रजिस्टर ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। दिस इज नोन एज रजिस्टर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ इस पूरे सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं। जिथे जिथे आर है सारे रजिस्टर्स हैं। ये देखो आर रजिस्टर 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 रजिस्टर, सारे रजिस्टर है। दिस ऑल आर रजिस्टर। सवाल यही है कि किसी सर्किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है और ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ कर रहे हैं। चलो समझते हैं रेजिस्टेंस की होती है। देखो रेजिस्टेंस का मतलब की है, आपने हुणी पढ़िया सी कि रेजिस्टेंस का मतलब है ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स हैं फ्री इलैक्ट्रॉन्स हैं दे स्टार्ट टू फ्लो। ठीक है, वो फ्लो होना या मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इतने मैं एक इलैक्ट्रॉन दिखा रहा, हालांकि इतने खरबों ही इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने। आप एक इलैक्ट्रॉन की मूवमेंट देखते हैं। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬॉल्स ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪਰ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਦੇ ਐਟਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन पॉजिटिव टर्मिनल ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन कुछ इस तरह जाएगा। देखो हुण इलैक्ट्रॉन के रस्ते दे विच बहुत सारे एटम्स आए। इसका मतलब बहुत सारे एटम्स ने इलैक्ट्रॉन नूं रोकण की कोशिश की। इसी नूं कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब विरोध करना। ये विरोध एक तरह का अच्छा विरोध भी मनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये एक्सैसिव जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने या एक्सैसिव चार्ज हुंदा उसनूं फ्लो होण तो बचा लैंदे हैं, तो इस नूं कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आया। लेकिन रेजिस्टेंस किस चीज़ से डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड करती है मेनली दो फैक्टर्स पे, एक लेंथ एक एरिया। ठीक है, दिस इज आर इज नोन एज रेजिस्टेंस, रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, एल इज नोन एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन। अगर तुसी किसी कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा वधा दो तो उसकी रेजिस्टेंस की हो जाएगी, वध जाएगी। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रॉन के रस्ते दे विच बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे जो कि उसका रस्ता रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर एरिया की गल करिए, अगर तुसी कोई मोटी तार ले लेंगे हो जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस घट जाएगी। वो क्यों? क्योंकि मोटी तार दे विच एरिया वधन होने करके जिहड़े कॉपर के एटम्स हैं उन्हां दे विच स्पेसिंग वध जाएगी और इलैक्ट्रॉन नूं जाण दे लई अच्छा खासा रस्ता मिलेगा। एवें समझ लो कि गली पूरी जिहड़ी स्ट्रीट है या हाईवे है पूरा खाली पे और कार नूं निकलण दे लई बहुत जगह है। लेकिन इसी तरह अगर तुसी कोई बड़ी ही नैरो जी या बड़ी पतली तार ले लैंदे हो तो उहदे नाल की हुंदा है, एरिया घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सेम एग्जाम्पल ले सकते हो,
हाईवे है जिहड़ा वो काफ़ी छोटा है या स्ट्रीट काफ़ी छोटी है और व्हीकल्स दे निकलण लई जगह काफ़ी घट है, तो इसनूं कहंदे हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ आया रेजिस्टेंस की हुंदा और किस ते डिपेंड करदा है। रेजिस्टिविटी ये की हुंदा, it is defined as the resistance of a conductor of the material having unit length and unit area of cross section। it is defined as the resistance of a conductor, किसी ऐसे कंडक्टर ਦੀ resistance ਜਿਹਦਾ unit length ਹੋਵੇ और unit area of cross section ਹੋਵੇ उसਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं resistivity। resistivity ਦੇ units ਹੁੰਦੇ हैं ohm into meters। ठीक है, उरे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि resistance is the property of an object and resistivity is a property of material। रेजिस्टेंस ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, मतलब जिस तरह ऑब्जेक्ट ਦੀਆਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ठीक है, समझ आया डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी? ओके। करंट डेंसिटी एक ही होता करंट डेंसिटी। देखो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आप इस तरह समझते हैं, मेरे को दो वायर्स ने कॉपर दियां, ऊपर भी चार्ज है नीचे भी चार्ज है। ठीक है, हुण ए चार्ज देखो ए गया क्रॉस सेक्शन चों और निचला चार्ज निकल गया। ਤੁਸੀਂ खुद सोचो कि किस च करंट डेंसिटी ज़्यादा होएगी। करंट डेंसिटी हुंदी की है, किन्ना चार्ज किन्ने क्रॉस सैक्शन चों एक सैकेंड दे विच या पर्टिकुलर टाइम दे विच क्रॉस कीता है, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। तो तुसीं आप दसो ऊपर वाली या नीचे वाली वायर दे विच किस दे विच करंट डेंसिटी ज़्यादा है? अगर तुहाडा आंसर नीचे वाला है, यू आर राइट। ठीक है, देखो करंट डेंसिटी नूं अक्सर आपां फ्लूइड दे फ्लो की तरह आप एग्जाम्पल वांगू यूज़ करते हैं, जिमें आप इस यूज़ कर रहे हैं। एक पाइप है, बेसिकली पाइप लैके चलो, बेसिकली वायर है। ठीक है, और ये जो चार्ज का फ्लो है दैट फ्लो इज़ लाइक ए फ्लूइड फ्लो, जिस तरह कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये जड़ियाँ लाइनस ने ये वालियाँ ये करंट डेंसिटी दी लाइनस है। तुसीं आप दसो किस च अपन लग रहा है कि करंट डेंसिटी ज़्यादा है, किस एरो च लग रहा है करंट डेंसिटी ज़्यादा है और किस एरो च लग रहा है कि करंट डेंसिटी घट है? सोचो आंसर दस। लैसर करंट डेंसिटी, क्यों? क्योंकि लाइनां दे विच स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इत्थे स्पेसिंग घट गई, तो इसका मतलब इत्थे हायर करंट डेंसिटी है। ठीक है, की हुंदी है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे वैक्टर डॉट डी ए, मतलब स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन चों कितना करंट पास कर गया, बेसिकली कितना चार्ज पास कर गया, दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी। And current density is given by J is I upon A, where J is current density, which is a vector quantity। याद रखना vector quantity है, direction same as that of direction of flow of positive charge, ऐसा unit ampere meter square। ठीक है, समझ आया? ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कि करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। ठीक है, लेट्स डिस्कस। तुसीं देखो अपने को एक वायर का क्रॉस सैक्शन है। ठीक है, वायर का क्रॉस सैक्शन है और इस बहुत सारे एटम्स हैं, ये वाले एटम्स हैं, ब्लू बॉल्स आर एटम्स, और जिहड़े ये तो तुहानूं पता लग ही गया होना, ये है बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुण जद फ्री इलैक्ट्रॉन्स इस पासे सपोज करो मूव कर रहे होंदे हैं, तो बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स बहुत सारे एटम्स नाल लगातार कोलाइड करी जाते हैं। बेसिकली पंजाबी च कहिए तो टक्करां मारी जाते हैं। इन्नियां सारियां कोलिजन्स होंदियां ने इक्को ही टाइम ते, मतलब यह कह सकते हो कि 21 सैकेंड दे विच मिलियंस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मिलियंस ऑफ कोलिजन्स करते हैं मिलियंस ऑफ एटम्स नाल। दूसरा इलैक्ट्रॉन्स नाल भी कोलाइड करते हैं, एटम नाल भी कोलाइड करते हैं, मतलब बहुत सारियां कोलिजन्स इक्को टाइम ते चल रही होंदियां ने। जद ये सारियां कोलिजन्स हो रही होंदियां ने, उस वक्त की हुंदा, कोलाइड होएगी। जद कोलाइड होएगी, टक्कर वजेगी, उदों की होएगा वर्क डन। वो वर्क डन या ऐ कह सकते हो कि आपस में फ्रिक्शन पैदा होंदी है। जिहड़ा वो वाली फ्रिक्शन है ना, बेसिकली मैं फ्रिक्शन कहूँगा, वो जी आपस दे विच फ्रिक्शन है, कोलिजन तो जी एनर्जी पैदा हुई है, वो किसी न किसी दूसरी एनर्जी दे विच कन्वर्ट जरूर होएगी। तो किस एनर्जी दे विच कन्वर्ट होएगी? ये जिहड़ी फ्रिक्शन है या जिहड़ा कीता होया वर्क डन है, इट गैट्स कन्वर्टिड इनटू हीट एनर्जी। तो आप देखते हैं कि हौली 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 तार गर्म होने लग जाती है और हीट छड्डन लग जाती है।
एक टाइम आता जब तार इन्नी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि शायद इसनों आपां टच भी नहीं कर सकते। इसनों कहंदे ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस इफेक्ट ਨੂੰ सब तो पहला डिस्कस या ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। जूल ने यह भी पता लगाया कि कोई करंट कितनी हीट पैदा करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की कहता है कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज गिवन बाय, रजिस्टर का मतलब है जो मैं तुहानू रजिस्टर दिखाया सीगा, उस रजिस्टर दे विच कितनी हीट पैदा होएगी जब करंट उस चों क्रॉस करेगा। तो जूल्स ने एक फॉर्मूला दिता सी H इज इक्वल टू आई स्केयर आर इंटू टी, वेयर H इज नोन एज हीट, I is known as current, R is known as resistance and T is time। इन्नी हीट कोई भी करंट पैदा करेगा। तुसीं एक गल सोचो कि जब किसी वायर दे विचों 3 एंपीयर का करंट निकल रहा तो कितनी हीट पैदा करेगा। अगर R और T दी आपां वैल्यू यूनिटी ले लीए तो एक्चुअली 9 एंपीयर के बराबर का करंट हीट पैदा करेगा। अगर तुसीं 9 एंपीयर करंट भेज दो तो 81 एंपीयर के प्रपोर्शनेट की हीट पैदा करेगा। और अगर तुसीं 100 एंपीयर का करंट भेजते हो तो तुसीं देखो 100 इंटू 100 कितना बन गया, 10,000 दे प्रपोर्शनेट दी हीट ये करंट पैदा करेगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ सीगा है। दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, समझ आ गया? ओके ओके स्टूडेंट्स, पावर इन सर्किट्स। जब भी किसी सर्किट दे विच करंट आंदा तो कितनी पावर डिसिपेट होंदी है, कितनी पावर कंज्यूम होंदी है, आपां हुण इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो अपने कोल एक बैटरी है, ठीक है, इत्थे एक बैटरी है और एक अपने को रजिस्टर है। बैटरी चों जिस तरह जब करंट चलिया एक छोटा जा DQ चार्ज निकलिया, ये देखो ये चार्ज निकलिया और ये बैटरी चों फ्लो हुंदा हुंदा ये इत्थे आ गया। हुण ये वाला जिहड़ा DQ है ये A तो B तक जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब की है, बड़े ध्यान ਨਾਲ समझना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि ਜਿਹੜਾ DQ है वह हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल वाल जाएगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल वाल जाएगा जिस करके एनर्जी घटेगी। इन्ना समझ आया? अगे चलते हैं। हुण देखो इस डायग्राम में देखो, जब DQ A तो B तक जाएगा मतलब हाई पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल तक मूव करेगा, ये लो पोटेंशियल वाल मूव करेगा तो एनर्जी होएगी du इज इक्वल टू dq इंटू वी। du मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय चार्ज इंटू पोटेंशियल। नाउ du इज इक्वल टू dq की वैल्यू क्या होंगी है I इंटू dt। वो क्यों? क्योंकि I इज इक्वल टू q अपॉन t। तो इथों बने I dt इंटू v। नाउ dt ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नीचे ले आओ, du अपॉन dt इज इक्वल टू I इंटू v। नाउ रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और पावर मतलब इस बैटरी चों कितनी एनर्जी इस रजिस्टर नू मिल रही है या कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। दिस इज गिवन बाय पावर और पावर इज गिवन बाय I डॉट V मतलब करंट इंटू वोल्टेज। ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर तुसी V इज इक्वल टू I इंटू R नू द्वारा पुट कर दो तो यू विल गेट P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R विच विल गिव रेजिस्टिव डिसिपेशन मतलब रजिस्टर दे विच एनी हीट या पावर ट्रांसफर हो रही है। एंड आल्सो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R जिसनू आपां फिर कहांगे रेजिस्टिव डिसिपेशन। तो जब भी रजिस्टर दे विच पावर अगर तुसी ट्रांसफर कर रही है तो तुसी दो फॉर्मूले लगा सकते हो, I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तिन्ना फॉर्मूले च फर्क की है देखते हैं। नोट इक्वेशन 1 ये वाली P इज इक्वल टू V टू I अप्लाइज टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर ऑफ ऑल काइंड्स। जब भी किसी भी तरह की इलैक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर होएगी तुसी P इज इक्वल टू I इंटू V लगा सकते हो। लेकिन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 अप्लाई ओनली टू द ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। मतलब इक्वेशन 2 एंड 3 सिर्फ उदी वैलिड है या उस टाइम ते ही वैलिड है जब इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी थर्मल एनर्जी दे विच कन्वर्ट होएगी। ठीक है, समझ आ गया? पेपर दे विच काफ़ी सारे क्वेश्चन आते होंगे और बड़े कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी आते होंगे, तो इस टॉपिक नूं बड़े ध्यान नाल रिवाइज करना और समझना और फीडबैक दे के उन्होंने जरूर दसना कि तुहानूं लैक्चर किदां लग्या। सजैशंस दो प्लीज़, फीडबैक दो ताकि साडा हौसला वधे। नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू जिंदगी।